Good afternoon, everyone. My name is Arshveer Kaur. I am Associate Program Manager at Connecting Dreams Foundation and your host for the session. I welcome you all to another session of Inclusion Adda, a platform for career progression talks. Inclusion Adda is an initiative by CDF Transformation that aims to empower people from marginalized communities that involves transgender community, people with disabilities, acid attack survivors, etc. This is a series of webinars for and by the people from disadvantaged and minority communities. Transformation aims to mainstream these groups into society, starting from building of knowledge in IT, skill building, and then moving towards mainstream employment or entrepreneurial opportunities. The three focus areas of the projects are skill building and employability, entrepreneurship, and job placement. Without further ado, I would love to introduce our guest for today. We have Saral with us. Hello, Saral. How are you? Hi, Arshveer. I'm doing just fine. How are you doing? I'm also doing good. Thank you for connecting with us today. Before moving forward, I would love to give an introduction about Cyril. Cyril is a software programmer working with Cognizant as a front-end developer responsible for providing innovative and digitally transforming solutions for every aspect of the business. She has 20 months of experience working in the tech sector. Previously, she has worked as back-end developer on numerous projects, primarily in the European region. She is an undergraduate from Gyani Jalsan campus, College of Engineering and Technology, Bathinda, with a degree in computer science and engineering. Again, I welcome you, Cyril, and I welcome all the audience for connecting with us. आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And so, Cyril, should we begin our discussion for today? Should we have a very productive conversation, dialogue on the road? Yeah, sure, absolutely. That was one wonderful welcome. Nice. Yeah, thank you so much. Yeah. So, Cyril, to begin with, हम सबसे पहले आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं. आपकी एकेडमिक जर्नी, आपकी प्रोफेशनल जर्नी, उसके बारे में आप हमें बताइए. Yeah, sure. I'll start with the beginning. I was actually born in Mumbai and then relocated to Punjab, and schooling was दोनों के बीच में हुई है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे. And I did my undergraduation, BTech CSE, Bachelor's in Computer Science and Technology from Bathinda, Gyani Jalsan, जैसे आपने बताया अभी. And उसके बाद ही in my लास्ट सेमेस्टर में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी एक लोकल कंपनी में, मोहाली में एक लोकल कंपनी है. तो ओवर देयर आई वर्कड फॉर 20 मंथ्स एज ए बैकएंड डेवलपर. तो PHP और वर्डप्रेस और ये मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज थी जिसपे मैंने काम किया, काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. पूरी टीम थी हमारी, तो उसका एक्सपीरियंस था मेरे को. एंड फिर उसके बाद में थोड़ा गैप के बाद में ड्यू टू वेरियस रीजंस, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड सारे उसके वजह से गैप आ गया था. कोविड का भी गैप आ गया था. तो फिर उसके बाद में विद द हेल्प आई डिड स्विच टू डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड, रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपमेंट. अपस्किलिंग मैंने खुद अपने आप ही करी है यूडेमी के थ्रू, एंड बाकी थोड़ा पीयर सपोर्ट भी था मेरा कजन्स के थ्रू. एंड आई अप्लाइड एट कॉग्निजेंट विद द हेल्प ऑफ प्राइड सर्कल. उन्होंने प्राइड सर्कल के थ्रू मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई अप्लाइड देयर एंड आई क्लियर्ड द इंटरव्यूज इंशाल्लाह. एंड फिर उसके बाद में अभी आई रिसेंटली जस्ट स्टार्टेड माय जॉब एट कॉग्निजेंट. That's really great. पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको न्यू जॉब के लिए. एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच. अभी जैसे आपने डिस्कस किया कि आपने अपना अपस्किलिंग लाइक यू हैव सेल्फ टॉट योरसेल्फ. So that is again something really nice that we all look forward to, and we all should be learning. Look, this is the first learning we'll take from you from here, that upskilling is not like we have to be looking forward bahar. Like you can yourself, self teach yourself. Cyril, जैसे अभी आपने बताया कि आपको पहले भी जॉब मिला था, है ना. आपका 20 मंथ्स का टेक सेक्टर में एक्सपीरियंस है, एंड कॉग्निजेंट के साथ आप लेकिन अभी ही जुड़े हो. तो हम जानना चाहते हैं कि अगर मतलब जो आपका पुराना एम्प्लॉयमेंट वर्क प्लेस था और उससे पहले भी आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, were there any instances of any discrimination that you faced? Discrimination, bullying, there was a lot.
लाइक ये तो अगर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो लाइक ये तो स्कूल से, कॉलेज से एंड वर्क प्लेस में भी मतलब रही है काफ़ी. आई वॉज बुलिड इन माई स्कूल. I'll tell you the reason, because I realized about my gender and sexuality. मुझे इन सब के बारे में अपने सेल्फ रियलाइजेशन काफ़ी 2 साल पहले ही हुआ था, जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले. बट उससे पहले भी कई जो होते हैं ना कि अनदेखे में भी आपकी जो मतलब होती हैं, जैसे लंबे बाल रखना पसंद होना, बॉडी हेयर नहीं होना, या फिर लॉन्ग नेल्स होना, और ऑल दैट स्टफ. तो उस वजह से मुझे इट वाज ऑलवेज कि लाइक ये थोड़ा वियर्ड है, ये क्या है, ये क्यों लड़कियों जैसे है, ये है वो है, ऑल दैट स्टफ. तो उस वक्त आई यूज्ड टू बी अ सिस het मेल. आई वाज नॉट अ ट्रांस पर्सन. तो तब मुझे मतलब स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस में मतलब बहुत मतलब लाइक बुलिंग का फेस करना पड़ा मुझे. मेरे ऑफिस प्लेस में इतना बुरा था कि लाइक 2 बार ऐसे हुआ है कि मैं रोई हूँ, लिटरली रोई हूँ टॉयलेट में, वॉशरूम में जाके. एंड इट वाज रियली रियली बैड कि मेरे टीम लीडर्स के साथ मेरी मतलब कुछ भी बात पे मतलब डिबेट होने लग पड़ती थी. तो फिर बाद में अब जब वो देखते थे कि लाइक नहीं जीत पा रहे, तो फिर वो पर्सनल अटैक करने लग पड़ते थे कि ये ऐसे है, वो ऐसे है, तेरा वो है, ये है. तो काफी मतलब खराब मतलब मेरा एक्सपीरियंस था मेरी प्रीवियस कंपनी में. हालांकि दिस कंपनी इज मच बेटर. इट टेक्स Cognizant takes its diversity and inclusivity pretty much seriously, and I've met a lot of fellow trans people themselves in the company. तो अभी मैं खुश हूँ यहाँ पे, अभी जितना मतलब मेरा थोड़ा टाइम रहा है यहाँ पे. तो इट्स बिन अ रियली गुड एक्सपीरियंस सो फार. या तो अभी तक तो ये जर्नी रही है. लाइक डिस्क्रिमिनेशन तो फेस किया है अभी, अनफॉर्चुनेटली, क्या बोले. सरल, वी आर रियली सॉरी टू हेयर अबाउट दैट, बट हमें इस बात की खुशी है कि अभी आप अपना जो वर्क प्लेस पे हैं उसमें आप खुश हैं. सो सरल, जैसे ये हमने देखा, आपने बताया भी कि डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया, बुलिंग फेस किया, और जो हमारे साथ हमने हमारी इंटरेक्शन जो बाकी कम्युनिटी मेंबर्स हमारे फ्रेंड्स के साथ हुई है, उनसे भी हमें ये सुनने को मिला है. तो सरल, जो आपका द चोजन फैमिली, जो आपका कम्युनिटी है, जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं, हाउ डू यू थिंक लाइक दे वर हेल्पफुल in overcoming all these obstacles personally as well, and how were they able to push you forward, and you landed this job, and now you are considerably at a stable position in your professional life as well. तो उनका कितना रोल रहा है? आई हैड अ फ्रेंड. किसी का माइक ऑन है शायद, आई गेस, या रिपीट हो रहा है. No, sir, I इट्स think we can continue. या. सो chosen family की बात करें तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन माय लेट फ्रेंड गौरव प्रबीर प्रामाणिक. he was the one like which helped me in every aspect of like आज मैं जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ. तो जब अपना 377 जब हमारा वो डिक्रिमिनलाइज हुआ था, जो उसके मतलब बैड पार्ट्स थे वो जब डिक्रिमिनलाइज हुए थे, हटा दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा. तो तब उन्होंने एक पोस्ट डाला था, ट्वीट डाला था, कॉलिंग आउट देयर टीम लीडर, हायर ऑफिशियल में, एडमिनिस्ट्रेशन में समथिंग थे, जो उन्होंने उनको काफी बुली किया था. तो वो वायरल हुआ था उनके थ्रू. फिर हम सारे फ्रेंड्स बने थे. मैं खुद उन्हें मतलब तब मैंने ढूंढा, हम बात करी, हम मिले. he was the one who was my friend, जिसने मुझे हेल्प करी, जिस to whom I went कि like I want to explore, I think I am bisexual. He was the one who helped me out. तो उस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, गौरव की वजह से आई एम whoever I am. तो चोजन फैमिली उसी के थ्रू मतलब मेरी शुरुआत हुई है, उसी के थ्रू मतलब he was my mentor to all the other friends, फिट फैमिली, जो मतलब अभी आज में जिन्हें मैं अपने कह सकती हूँ कि लाइक मेरी चोजन फैमिली है, माय सपोर्ट ग्रुप, माय पीयर ग्रुप, जो who is there for me emotionally, morally and often financially as well. क्योंकि जॉब मेरी अभी लगी है, पहले नहीं थी. तो लाइक तो and I am also battling depression and anxiety issues. तो I am on antidepressants, anti-anxiety medicines, और बीच में इतना खराब हो गया था कि I was also on sleep medicines. तो you can imagine कि like it's not really that good. तो अब
all this transitioning, being a trans person and job भी नहीं है, and family का मेरा इतना support नहीं है. Like my family is only supporting me financially and not, there's nothing, not much emotionally. So I have to deal with all that. तो यहाँ पे फिर वो chosen family, वो support group जो online है सारा कुछ, उन्होंने मतलब मेरी सारी help करी है. तो I would really like to give a shout out to each and every one of them, but बहुत सारे नाम हो जाएंगे. But yeah, they know that I really love them, and they've been there for me and I'm being there for them, and I really want to give back to the community जिन्होंने मेरी help करी है. तो yeah, chosen family and support group is really important, and they've helped me a lot personally. That's really nice to know, Saral. Definitely, like community, when we have a close knit community, तो वो हमारा backbone रहता ही है. So that's really nice to know. सरल, जैसे आपने बताया कि कॉग्निजेंट में आपका जॉब अभी रिसेंटली ही आपको मतलब मिला है यहाँ पर. हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाउ डिड यू लैंड दिस जॉब, एंड आपका टिपिकल डे, मतलब आपकी क्या जॉब ड्यूटीज हैं, आपका मतलब जॉब प्रोफाइल, आपको इस सब के बारे में, जैसे आपने बताया कि प्राइड सर्कल के थ्रू आपने मतलब ये इधर अप्लाई किया एंड ऑल, आपका इंटरव्यू आपने बोला इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, एंड उसके बारे में हमें आप बताइए, बिकॉज हमारे बहुत सारे फेलोज जो इस टाइम पे दे रेडी टू बी इन द जॉब मार्केट, तो वी वुड रियली लव टू हियर अबाउट योर एक्सपीरियंस. सबसे पहले तो आई वुड टेल यू दिस कि मेरे cousins जो हैं, my cousin brother, one is in Europe, one is in Australia, so they both are also in the IT field. मैं खुद IT field में हूँ, तो प्रोग्रामिंग का जो बैकग्राउंड वो तो मेरा रहा है शुरू से. बट सिंस आई टोल्ड यू कि मैं PHP डेवलपर थी, बैक एंड डेवलपर थी, एंड आई रिसेंटली स्विच टू TIHS व्हिच इज फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी. तो उसमें उन्होंने काफी मेरी मदद करी है, लाइक हेल्पिंग मी विथ आइडियाज एंड कि क्या करो, ये करो, या द गाइडेंस एंड मोटिवेशन. तो डिप्रेशन की वजह से काफी वो भी रहा है मेरा कि फोकस इश्यूज, कंसंट्रेशन इश्यूज, मेमोरी इश्यूज हैं. तो दे वर द helping me out in all those aspects. बाकी I would really say कि job land करने से पहले you need the skills to be able to clear the interviews and be ready, be preparable, presentable with the practical to be solve the problems. Basically interviews clear करने के लिए skills होने चाहिए. तो मैंने उस चीज के लिए क्या किया, I actually bought some Udemy courses सेल पे, जो मुझे समथिंग कुछ लाइक 450, 400, 500 समथिंग के अराउंड पड़े, विच इज लाइक क्वाइट अफोर्डेबल. एंड वो एक बार खरीदा तो लाइक इट्स अ लाइफ टाइम अवेलेबल. तो आई बॉट दोस कोर्सेज. मैंने उनको मतलब काफी टाइम तक किया, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे, उससे मुझे काफी वो मिला, एक्सपीरियंस मिला, लाइक नोइंग अबाउट द होल थिंग इन डिटेल, इन डेप्थ, सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन था. तो आई लर्न क्वाइट अ लॉट फ्रॉम दैट. तो व्हेन आई से कि लाइक मैंने खुद अपस्किलिंग करी आई टू मी एंड घर पे बैठ के अपने, तो आई डिड दैट. एंड बाकी जस्ट लर्न एंड थोड़ा प्रोजेक्ट्स बनाओ अपना बैठ के, तो वो उससे लर्न किया. एंड देन फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. मैंने अपना रेज्यूमे और सारा कुछ वो डाला था प्राइड सर्कल पे. मैंने जॉब फेयर भी अटेंड किया था February 2020 में, विच इज लाइक प्री कोविड. एंड तब भी मुझे मतलब 5-6 कंपनीज का आया था रिस्पॉन्स, बट देन उसके 1 महीने बाद एक लॉकडाउन हो गया. तो जहां उन्होंने खरीद हायरिंग कर दी थी, वहीं पे वो लोग दे वर जस्ट बेसिकली लेइंग ऑफ पीपल. तो दैट आल्सो हैपेंड. तो वही फिर से मैंने अपना अभी अपस्किल करके अपना अपडेटेड रिज्यूम मैंने उसमें डाला प्राइड सर्कल में, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एट कॉग्निजेंट. वहाँ पे इंटरव्यूज हुए मेरे 3-4, and I cleared them, and I finally joined the team as a programmer analyst. About my duties, I'll just say कि अभी तो वैसे मेरा training period है, but I'll be working on some projects which are Internet of Things, which is basically like your Alexa device is connected with the smart bulb. तो आप उसको क्या कि सीधा वो ऑन कर सकते हो, and basically some you can just say in layman's language, आसान भाषा में ये कहेंगे कि चीजें जो इंटरनेट के थ्रू आप उन्हें एक्सेस कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड मतलब कुछ मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो मैंने हैंडल करने हैं.
मेरा काम मोस्टली जो वेबसाइट्स में जो फ्रंट एंड जो होता है, जो आपको वेबसाइट्स में दिखेगा सामने, जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, फॉर्म्स हो गए या कोई एनिमेशन, ट्रांजिशन या कुछ भी, या लाइक कैसे प्रेजेंटेबल है सारा कुछ, तो उस चीज में मेरा काम है उस चीज को बनाना, उसको करना, लाइक रिस्पॉन्सिव, फोन में भी अच्छा दिखना चाहिए, लैपटॉप में भी, बड़ी स्क्रीन में भी अच्छा दिखना चाहिए, कहाँ कौन सा एलिमेंट कैसे है। तो दिस इज माई जॉब इन आसान भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो। Thank you, Cyril, and congratulations again for landing such a, I think I would call it your dream job because you had your interest from your academic life यहाँ पे, and then you upskill, and Yeah, congratulations for that. Like आपने, thank you. you upskilled yourself, फिर दोबारा upskill किया, and now you have landed such a good job. Congratulations on that. Thank you so So, much. Cyril, मुझे like on your current standing in the life as a trans woman. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि एक ट्रांस पर्सन की लाइफ में एजुकेशन और करियर कितना इम्पोर्टेंट है? हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू वांट टू एक्सप्लेन इट? मेरी एक फ्रेंड है, मुझे से एक बात याद आती है, तो मेरी एक फ्रेंड है ऋतुश्री, ट्विटर पे क्वेर नारी करके उनका हैंडल है। उनसे बात करते हुए बीच में मेरी एक बार, उन्होंने भी मतलब काफी मोटिवेट किया, दे पार्ट ऑफ माय सपोर्ट ग्रुप एंड ऑनलाइन फैमिली, चोजन फैमिली। तो उन्होंने बीच में एक बात बोली थी मुझे, जो मुझे मैं यहीं पे फिर से रिपीट करूंगी कि एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट कि तुम उसके बिना, अगर तुम मतलब आजकल बिना एजुकेशन के यू कैन नॉट लैंड डिसेंट जॉब्स। वो मांगती हैं वो बेशक डिग्री है, वो पेपर है, वो पेपर की वैल्यू है। अगर तुम बेसिक स्किल की ना करो तो वो पेपर की भी वैल्यू है, और स्किल्स तो है ही है। स्किल्स तुम वो डिग्री से लो या फिर खुद अप स्किल करो या जैसे मर्जी करो, तो वो पेपर की लाइक इट इज रियली इम्पोर्टेंट। उन्होंने मुझे खुद एक पर्सन का, मुझे नाम नहीं याद उनका, एक उन्होंने एग्जांपल मुझे बताया था कि वो ट्रांस पर्सन थे, उन्होंने ट्रांजिशनिंग और वो सारा कुछ करने की इच्छा थी, उन्होंने घर वालों को बताया, घर वालों ने उन्हें निकाल दिया, और इट इज रियली सैड। एंड उसे लाइक कहाँ वो एजुकेटेड थी, कॉलेज में थी, एंड कहाँ वो लाइक शी वाज परस्यूइंग हर एजुकेशन इन सारा कुछ, एंड कहाँ उसको मतलब पूरा फैमिली ने कट ऑफ कर दिया, एंड शी हैड टू लिटरली सेक्स वर्क में उसको मतलब करना पड़ा। आई एम नॉट सेइंग सेक्स वर्क इज बैड, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एजुकेशन कहाँ उसका वो था, एंड कहाँ वो मतलब हो गया। तो these are many instances जहाँ पे फैमिली की वजह से कह लो या फिर अदरवाइज कोई भी अदर रीजन से कह लो, बट या एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट enables the window to so many opportunities, जहाँ पे आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, जहाँ पे आपके पास अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो फिर यू कैन लिव, हैव अ सेफ स्पेस, afford your therapy, mental health के लिए, या फिर HRT की medicines, या फिर so many things. So yeah, education allows that. So it is really important as a trans person to be self-sustainable, independent. पैसे होंगे तो like it changes a lot. मतलब पैसे सब कुछ नहीं है, but it does help a lot आज के टाइम में। तो yeah, it is really important. राइट सरल। सरल, जैसे आपने भी बताया और आपके इंट्रोडक्शन में भी आई जस्ट शेयर्ड कि आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री है। हाँ हमारे जी। साथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में, CDF में हमारे साथ फेलोज जुड़े हुए हैं जो बेसिक आईटी कोर्स और पाइथन, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज अभी इस टाइम पे वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो आई वांट टू नो कि आईटी स्किल्स, जैसे आपका भी बैकग्राउंड है आईटी में, तो आईटी स्किल्स आज के टाइम में लाइक हाउ डू यू थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ कैन दे पुश not just the community members but everyone ahead of their career? And जैसे there are fellows जो अभी 12th standard में हैं, तो आप मतलब कैसे ये मतलब हमारे साथ प्लीज शेयर करिए कि आईटी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे चल के आपको कंपैरेटिवली ग्रेटर पुश कैसे मिलेगा इससे आगे?
सी IT स्किल केस में आजकल जो मेन जो वो यही मांगते हैं कि टू हैव द स्किल्स, डिग्री भी इतनी मैटर नहीं करती। आई शेयर माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरी ड्यू टू मेनी रीजंस, प्राइमरीली आई से डिप्रेशन, मेरी जो डिग्री हुई है वो 8 साल की हुई है। तो जहां मेरी 4 साल की डिग्री थी वो मेरी 8 साल में कंप्लीट हुई है। डिस्पाइट दैट मेरी लास्ट सेमेस्टर में जो मेरा 8 सेमेस्टर था उसमें मेरी 13 बैकलॉग्स थी, मेरी 13 बैकलॉग्स थी मेरी। एंड डिस्पाइट दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल्स पार्ट, आई वाज एबल टू लैंड अ जॉब। लोकल कंपनी थी बट स्टिल इट वाज अ जॉब, इट वाज स्टार्टिंग स्टेप फॉर माय करियर। तो स्किल्स आर रियली इम्पोर्टेंट। डिग्री भी है, होनी चाहिए, लाइक आई वुड नॉट से कि लाइक डिग्री छोड़ दो स्किल्स पे फोकस करो। डिग्री भी होनी चाहिए बिकॉज दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। I'll give you one example ki like agar if you like in future you want to immigrate to some place, so you can go by on study visa or something like that, तो उसमें डिग्री काम आ जाती है आपकी जो ऑलरेडी करी हुई है, stuff like that. Skills are really important. जैसे मैंने बताया मेरे पर्सनल केस में मतलब ये रहा है कि I was, despite backlogs I was able to land a job. तो मैं तो सभी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि हो सके तो अपने स्किल्स पे जितना वर्क कर सकते हैं उतना करिए। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन रिसोर्सेज, बेसिक से लेके हाई एंड वाले। W3 स्कूल इज द मोस्ट बेसिक वन, जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स भी मिल जाएंगे। उससे ऊपर और जाएंगे तो फिर आपको लाइक और मैं एग्जांपल्स दूं तो freecodecamp.org, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बाय individual people. There are very good courses, some of them online. YouTube पे भी है कई सारे फ्री कोड कैम्प और W3 स्कूल ये दोनों फ्री हैं। और इसके अलावा इफ यू कैन अफोर्ड तो आई वुड हाईली रिकमेंड यूडेमी पे भी, यूडेमी हो गए, अनअकैडमी हो गए, बहुत सारे हैं। पर्सनली आई गॉट सम ऑफ माय कोर्सेज ऑन यूडेमी। तो मैंने काफी सारे कोर्सेज उस पे मतलब यूडेमी पे मैंने परचेज कर रखे हैं, 400 450 500 के ऊपर सेल लगती है जब, तो आई बॉट देम, पड़े हुए हैं एंड आई यूज्ड टू डू देम। उनसे मैंने अपना स्किल अपस्किलिंग करी, अपनी जावास्क्रिप्ट का किया मैंने, सॉलिडिटी ब्लॉकचेन का भी किया था बीच में। और मेरे पास और म्यूजिक थ्योरी और पियानो और उसके भी पढ़े हुए हैं, लिनक्स, सीक्वल, बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो लाइक कुछ कुछ यूडेमी पे भी फ्री कोर्सेज हैं तो यू कैन गेट दैट। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोर्सेज ऑनलाइन लीजिए। आपको 1-on-1 वो आपको कंटेंट मिलेगा जिससे आप उसे देख सकते हैं एंड आप प्रोजेक्ट्स मतलब उनके खुद ही उसमें वहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपको थोड़ा आइडिया पता लगेगा, इवन इफ आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आपको आइडिया लगेगा कि लाइक वो जब वो प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे कोर्सेज में से और आइडिया लेके, तो उससे आपको काफी आइडिया लगेगा कि लाइक रियल लाइफ में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यू लर्न अ लॉट, यू लर्न अ लॉट। और बाकी जब फिर आप उन्हें गिटहब पे डालिए, अपनी अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाइए प्रोग्रामर्स के लिए, अपना नेटवर्क बनाइए, सपोर्ट ग्रुप बनाइए, और फेलो डेवलपर्स हैं या कोई भी है, बेशक वो ट्रांस कम्युनिटी के है या नहीं है, मतलब मेक फ्रेंड्स एंड क्रिएट योर नेटवर्क, ताकि कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है तो यू ऑलवेज रेडी टू ग्रैब इट। कोई भी एक अपना आप स्किल या जो भी आप मतलब करना चाहते हैं उस चीज पे फोकस करिए और उससे रिलेटेड आप कोर्सेज खरीदिए या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे देखिए या जैसे मर्जी, बट just focus on that stuff and build your skill in that. एक बार आप प्रोफिशिएंट हैं अपने उस लैंग्वेज में और आपको आपके बेसिक्स उसमें क्लियर है तो यू कैन डू अ लॉट वेल। एंड कंपनीज आजकल स्किल मांगती हैं, एज लॉन्ग एज यूर डूइंग द प्रोजेक्ट्स एंड उनको पैसे कमा के दे रहे हो, प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो दे वांट यू डिस्पाइट द डिग्री और नॉट हैविंग अ डिग्री। तो they just want someone who can do the work, who can complete the task, who can build something, solve the problems. तो वहां पे स्किल इंपॉर्टेंट आती है, डिग्री नहीं। डिग्री अगर है भी तो फिर कोई मैटर नहीं करती है until unless अगर आप उस चीज को उनके लिए कोई इफेक्टिव हो या नहीं हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि लाइक ऑनलाइन कोर्सेज या जैसे मर्जी करके आप मतलब अपने आप को अपस्किल कीजिए
एंड नेटवर्क बनाइए अपना, एंड उसके नेटवर्क बना के आप मतलब ट्राई टू अप्लाई. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, अप्लाइड सर्कल एंड पेरिफेरी, और काफ़ी सारी हैं जो हु आर आउट देयर ट्राइंग टू हेल्प अस. कनेक्टिंग ड्रीम्स फाउंडेशन भी है एंड तो दे आर देयर टू हेल्प अस. तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको पुश कर रहे हैं. जस्ट आपको अपना थोड़ा सा पार्ट करना है टू बाकी टू ट्राई एंड अपस्किल योरसेल्फ एंड देन अप्लाई जॉब्स एंड यू विल गेट देम, यू विल डेफिनेटली गेट देम. थैंक यू सरल, थैंक यू फॉर द वाइस वर्ड्स. इसको जस्ट हम टू वे कॉन्वर्सेशन बनाने की बजाय लेट्स ओपन द फ्लोर. हमारे साथ जो हमारी फ्रेंड्स अभी कनेक्टेड हैं, अगर आपको सरल जी से कुछ बात करना है, कुछ पूछना है, तो प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, या फिर आप चैट में भी क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं. So, Saral, I have 1-2 questions that has been shared with me via WhatsApp, so I'll be definitely tagging you with that. लेकिन अगर कोई हमारे audience में से सरल से बात करना चाह रहे हैं, तो please. Yeah, sure, absolutely. Meanwhile, Saral, I'll just tag you. This was the question from one of the fellows from Mithir Trust. तो आपका role model कौन है? Like, what inspires you? Like, not just the person, but any activity, any book, anything. What inspires you to move forward? And if you have a specific role model, we would really love to know about. To be honest, अगर मैं इंस्पायरिंग और उसके बारे में बात करूँ तो um, there are a few people in my life that I fondly look up to for this some of their values. Nobody really is perfect, I would say that. So हर एक की qualities होती हैं कुछ ना कुछ. तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि चाहे जो मर्जी है person, तो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं मैं उनको grasp करने की कोशिश करूँ. तो ऐसे ही मेरे grandfather हैं, उन्होंने काफी मेहनत करी है, एंड being honest, वो हैं. There was this one of my friend Gaurav, I miss him so much. He used to inspire me a lot. There are so many trans friends of mine, Swarnim, Ritushri. They inspire me a lot. They have been there for me. The mere existence of them, tackling and battling the world, जो इतना मतलब backlash और slack push कर दिया हमारे ऊपर, just for being ourselves. So they are fighting each and every day. So that gives me strength a lot. Just to be out there and fight. क्योंकि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे भी देख के शायद कल को कोई इंस्पायर होगा, एंड they'll try to do much better than me perhaps. So yeah, these are some of my friends. And एक चीज मैं बोलूँगी, यही बोलूँगी कि जैसे मैं पहले बता रही थी कि like I try to grasp the good things from each and every person. चाहे वो बुरा भी है तो उसकी अगर कुछ छोटी मोटी अच्छाइयाँ हैं तो I try to inherit those, and yeah, so that's how I see the world and tackle problems in my way. Thank you, Saral. Thank you for sharing that with us. So, Saral, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फेलोज हैं जो दे आर रेडी टू गो आउट देयर इन द जॉब मार्केट. तो उनके लिए लाइक ऑल्दो यू हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ सजेशंस, आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं अपना नेटवर्किंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए, बट जस्ट टू रैप इट अप, एक समराइज्ड वर्जन कि आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं. I would just say this one thing कि just a second. Yeah, I would just say this one thing कि create your own some support group. मतलब चाहे जितने भी दोस्त हैं सारे हैं उनको रखिए. It's okay to reach out for help. Mental health is also really important to make sure that your mental health is also okay. Because mental health पे मैं बहुत stress देना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद I was diagnosed with depression with 2015. तो
काफी टाइम से मैं बैटल कर रही हूँ, मेडिकेशन पे हूँ, एंड it does affect a lot. तो mental health is really important. Try to upskill yourself. चाहे जैसे मर्जी आप मतलब कोई भी एक चीज लो, पकड़ो उसको, and just learn it. कोर्स, ऑनलाइन कोर्स करके, या फिर आप जैसे मर्जी, लाइक किसी कोई फ्रेंड अगर आपको सिखा सकता है या कोई आपको डाउट्स आपके क्लियर कर सकता है जैसे मर्जी, तो लाइक डू दैट. Point is just to skills and knowledge. ये चीज आपकी अगर मतलब बढ़िया है तो you'll crack the job. There's no such thing that you're not gonna be able to do. तो आजकल स्किल्स और ये नॉलेज ही मांगते हैं, तो फिर इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस कीजिए. बाकी ट्राई टू मेक अ सपोर्ट ग्रुप. ऑनलाइन काफी सारे बहुत अच्छे लोग हैं who are ready to help. I am also there to help. अभी मेरी कई लोगों ने हेल्प करी है, तो इवन I want to return it back to the members of the community. मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं ऑनलाइन, तो रीच आउट. ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए अपनी. आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे जो हेल्प करने को तैयार है, आपकी इमोशनली, मोरली, फाइनेंशियली. And just work on yourself. You'll get there. Thank you, Saral. So, Saral, just this will be the last question that I'll be tagging you with. On a personal note, on the current standing of you in your life as a trans woman, so is there any personal advice that you would like to share with our friends who have connected here with us about their personal well-being, or maybe any experience जो आपके experience रहा है transitioning के time, transitioning से पहले या बाद में, तो कुछ personal note पे आप कुछ advice देना चाहते हो हमें, मतलब हमारी friends को? As a trans person, see, I'll tell you this one thing. काफी patience जरूरी है. Like personally, अगर मैं अपना experience share करूँ तो जब I transitioned, I felt really, really, really alone. And ये लगा था कि दुनिया खत्म है, ये नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, ये नहीं, वो नहीं, blah blah blah. तो try to create a support group. और जो फेलो ट्रांस पीपल है, आप उनसे बात कीजिए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कैसे जहाँ तक वो पहुंचे हैं जॉब का, या फिर लीगली, या फिर मेडिकल ट्रांजिशनिंग, या फिर जो भी चीजें हैं, उनसे डिस्कस कीजिए. आई एम श्योर दे विल हेल्प यू आउट. दे विल बी देयर फॉर यू. इसके अलावा मैं तो ये और कहूँगी कि चाहे पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में मेरा ये सीन हो गया था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ माय हार्मोन्स एंड एवरीथिंग. तो इट इज अ स्लो प्रोसेस. So I would really say patience is really important because it can also drive you crazy. And कि अभी effects क्यों नहीं show हो रहे हैं, तो it's a slow process. I would tell you straight up. And आपकी medicines and जो कुछ भी है आप discuss करते रहिए fellow trans person से, because often times मुझे भी ये हुआ है कि कुछ जो चीजें जो मेडिसिन वो सारा कुछ है जो मुझे नहीं पता थी, वो मुझे फेलो ट्रांस पीपल के थ्रू पता चला है. हमारा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, द हैप्पी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप, तो उसपे मैं हूँ. सिमिलरली एक ट्रांसमेन का भी ग्रुप है, आई हैव बीन टोल्ड, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट वन. तो देयर आर दीज कम्युनिटीज आउट देयर टू हेल्प यू, तो बी अ पार्ट ऑफ देम. कल को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कुछ भी है इशू, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, तो दे आर आउट देयर टू हेल्प यू. तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट टू हैव अ नेटवर्क एंड सपोर्ट ग्रुप. एंड तो जैसे मैं मूवी बता रही हूँ ना कि मेडिकल प्रॉब्लम्स मेरी कई आई हैं. बीच में मेरा 5 महीने तक मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो गया था काफी, ड्यू टू सम रीजंस. तो उसमें मेरे काफी लोगों ने मेरे को हेल्प करी कि GnRH मेडिसिन होती है, ये ट्राई करना है, ये अपने डॉक्टर से बात कीजिए, अपना ये वो सारा कुछ. तो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट टू हैव अ सपोर्ट ग्रुप. एंड सम सीनियर्स yeah, older trans people have gone through it all, and so that they can show you the way and tell you a little bit more about it all. तो एक तो ये है. एंड दूसरी चीज तो मैं यही बोलूंगी, इट्स ओके टू बी योरसेल्फ.
it's okay to be yourself. आप जैसे भी हो आप वैलिड हो. अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइक यू नो ये नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे नहीं हूँ, या मुझे कोई ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, screw that. Does not matter. आपकी लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है. अगर आपको कोई बोले कि आप ऐसे नहीं हो पाएगा, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर टू लव यू, टू बी विथ यू, एंड they care about you. So it does make a difference to just be yourself, trust in yourself, and be out there. Representation matters a lot. आपके mere existence can make a huge difference on others. रितुश्री एक ट्रांस पर्सन है जिन्हें मैं काफी एडमायर करती हूँ. उनकी mere existence कि she is she's working in a corporate sector and she's a stand-up comedian. तो उनकी mere existence मुझे कितना इंस्पायर करती है. तो I would say the same to you guys कि आपकी mere existence से पता नहीं कितने लोग इंस्पायर होंगे. तो just be yourself, be out there. आपको लोग देखेंगे, your circle will grow, your network will grow, and a lot of people will get inspired by that. So yeah, this is really important. So I would really like to emphasize on these things. Thank you so much, Saral. आप हमारे साथ आज today आपने अपना life का journey, अपना academic, अपना personal, अपना professional journey हमारे साथ share किया, और आपने अपने future aspects share किए, और अभी जो आपने ये advice दिया है on a personal note as well. तो आई होप ये हमारे जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फेलोज हैं, जो इसका रिकॉर्डेड सेशन जिनको अवेलेबल करवाएंगे हम, तो उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले, एटलीस्ट उनको एक डायरेक्शन मिले. मतलब आई थिंक बहुत, इवन मी पर्सनली आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. टू बिगिन विद अपस्किलिंग का पार्ट, जो मैंने सेशन स्टार्ट होते ही बता दिया था कि बाहर नहीं देखना, मतलब अगर मतलब अपॉर्चुनिटीज की कमी बाहर से है, बट हम अंदर से भी अपना खुद की अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं. अपस्किलिंग हम खुद भी कर सकते हैं, जैसे आपने बताया. एंड आई थिंक this is a really productive conversation that we had here, and great. I would again open the floor to our friends who have connected here. अगर आपका कोई भी query है, आपको कोई भी question है, या फिर आपको सरल जी के साथ बाद में connect करना है, तो I think सरल जी be more than happy to do that. Yeah, तो absolutely. yes, तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो floor is open. Yeah, Baki, I would highly recommend to connect with your fellow trans people या community members, या फिर अगर आपकी job field के हैं same, तो it helps a lot. कल को अगर आपको किसी की help चाहिए तो it does help a lot. Great. So I think Saral ji, this is our time to wrap it up. Again, I would express the heartiest gratitude from the behalf of Connecting Greens Foundation Transformation Project. आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. थैंक यू so much, Ashwi. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Dipali had raised their hand. I don't know if they want to she is something. Appreciating you. She is clapping for you. Okay, I'm new to this. Thank you so much. I'm just new to this online meeting culture, so no, that's perfectly fine. And I think this was a really productive session that we had with you. This was a very productive conversation. Thank you so much. Glad to give back to the community. Thank you so much, Ashwin. Thank you.